Hi students, very good morning to all of you. Today we are going to proceed second part of electricity from where we had left it in previous lecture. Those students who have not seen that video, you must see that so that you can understand the second part also in very well manner. आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं. पहला भाग आपको मैं पढ़ा चुका हूं. जो भी स्टूडेंट वो पहले भाग को नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, वो प्लीज चैनल पे जाके उसे देखें ताकि ये सेकेंड भाग भी आपको सही से समझ में आए. तो मैं एक बार ओवरव्यू करवा देता हूं आपको कि पहला भाग में आप लोगों ने क्या पढ़ा था. वहां पे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. टू टाइप्स पढ़े थे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट and in current electricity the electrons are in motion. Thereafter we had read types of charge, positive charge and negative charge. Thereafter we had read properties of electric charge, SI unit of electric charge, that is coulomb. Thereafter we had read methods of charging body. So we had read there are three methods of charging body: conduction, induction and friction, or by rubbing method. These three methods we have read in previous lectures. Okay, now we are going to proceed further this topic, that is difference and some similarities between gravitational force and electrostatic force. Differences and similarities between gravitational force and electrostatic force. So there are some similarities and some differences between gravitational force and electrostatic force. As gravitational force, it is a non-contact force, and electrostatic force, it is also a non-contact force. Both are non-contact force. Second similarity, it is a central force. Means gravitational force and electrostatic force both are central force. What type of force? Central force. Central means this force acts along the line between the 2 point charges or between the center of any two bodies. Okay. So both are central force. Both are conservative force. Both the type of force are conservative force. So these are the similarities between gravitational force and electrostatic force. There are some differences between gravitational force and electrostatic force. Gravitational force is only a attractive force. Means gravitational force is only a attractive force, but electrostatic force is attractive as well as repulsive, because we have seen in previous class that like charge repel each other and unlike charge attract each other. Means positive repel, negative also repel, but positive negative attract. So electrostatic force is attractive as well as repulsive force, but gravitational force is only a attractive force. Second difference is that gravitational force, magnitude of gravitational force does not depends on the nature of medium where the two bodies are kept. Means gravitational force मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है. दो बॉडी एयर में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है या वाटर में रखा हुआ है, वो इस पे निर्भर नहीं करता है. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो एक्ट कर रहा है वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है. क्योंकि अगर एयर में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कुछ और रहता है, वाटर में है तो वहां पे कुछ और होता है. मतलब कि मीडियम टू मीडियम ये वेरी करता है. तो दीज आर द सम डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, तो आई थिंक यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड electrostatic force. You should keep this in your mind. I have written already on the blackboard. You can write down it from here on your notebook. Now we will read classification of materials on the basis of movement of electric charge.
Classification of materials on the basis of movement of electric charge. There are 4 types of materials on the basis of movement of electric charge. They are insulator, semiconductor, conductor and superconductor. आइए हम लोग ये 4 प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट उसी मटेरियल्स में फ्लो होता है जिस मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो यहां पे आके समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए कि एक सपोज दिस इज अ मटेरियल, एनी मटेरियल, ओके, एंड देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ओके। आप जानते हैं दुनिया के सबसे मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो वो होता है आपको 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डायनामिक। डायनामिक का मतलब वो मूव नहीं करते हैं, वो स्टैटिक हो जाते हैं एट दिस मिनिमम टेम्परेचर। बट when we bring some materials at room temperature, room temperature का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। if you will convert this 25 degree Celsius in Kelvin, then it will be 273 plus 25 means it will be 538 298 Kelvin, 298 केल्विन। जब हम किसी मटेरियल्स को 298 केल्विन पे लाते हैं, किसी मटेरियल्स का मतलब वो मटेरियल है आपका कंडक्टर, 298 केल्विन पे आता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायनामिक हो जाते हैं, मींस वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। वो फ्री कैसे होते हैं यहां पे समझिए आप। फ्री कैसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां पे समझेंगे। होता क्या है कि जैसे ये कोई एक एटम है और इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो जब एटमॉस्फेयर से जब ये रूम टेम्परेचर पे आता है मींस 298 केल्विन पे आता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से एस्केप कर जाता है। यहां से क्या कर जाता है, एस्केप कर जाता है। एस्केप का मतलब यहां से निकल जाता है। अब यहां इसके चारों ओर घूमना बंद कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सब एटम में से निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर मींस जो भी कंडक्टर है वो कंडक्टर जब रूम टेम्परेचर पे आता है 298 केल्विन पे आता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे थे वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के वो बाहर निकल आते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मौजूद होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में उपलब्ध होते हैं। लेकिन वही इंसुलेटर रूम टेम्परेचर पे जब आता है फिर भी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उसे इतना जोर से पकड़ के रखता है कि वो बाहर नहीं निकल पाता है। इतना एनर्जी उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है कि वो इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। जो कंडक्टर में ये चीज हुआ था, कंडक्टर में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के ये बाहर निकल आता है। मींस बाहर का मतलब मटेरियल के अंदर ही होता है, वो मटेरियल से बाहर नहीं कूद जाता है, मटेरियल के अंदर ही होता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के लिए सफिशिएंट नहीं होता है कि वो एनर्जी लेकर के बाहर निकल आए। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, साफ साफ पता चलता है। आप कंसेप्ट को समझिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट which are escaped out from the influence of electrostatic force applied by the nucleus. Those electrons are known as free electrons.
but these free electrons are not present in any insulators. So we can say that those materials which have lot of free electrons, which have billions of free electrons to carry electric charge, they are known as conductor. But those materials which have no any free electrons to carry electric charge, they are known as insulator. As for example, glass, rubber, bricks is conductor. Metals, most of the metals like copper, silver, aluminum, there are many metals you have read. Okay, तो आपको ये याद रखना है कि कंडक्टर में बहुत ढेर सा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिक करंट कॉज करता है, लेकिन इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो नहीं कर पाता। बात समझ में आया सभी को? तो कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर से पहले लगा हुआ है सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है भाई? हाफ, है ना। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ मीन्स कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर वाला है और कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर वाला है। किसके पास? सेमी कंडक्टर के पास। सेमी कंडक्टर के पास कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर वाला है और कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर वाला है। मीन्स इसके अंदर इसका एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं लेकिन उतना ज्यादा फ्री नहीं होते हैं जितना कि कंडक्टर में उपलब्ध है। तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। देयर आर फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक दैट बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन से दैट those materials which have few electrons to carry electric charge known as semiconductor. Example silicon, germanium। ये सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में ये हमें हेल्प करता है। ये सेमीकंडक्टर के हेल्प से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। हमें कितना करंट देना है किसी डिवाइस में वो हम सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करके हम इसे यूज कर सकते हैं। सोलर सेल बनाने में हमारा सेमीकंडक्टर यूज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये सेमीकंडक्टर कभी कभी इंसुलेटर का भी काम करता है और कभी कभी कंडक्टर का भी काम करता है। जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कंडक्टर की तरह काम करता है। तो ये आपका सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आता है आपका सुपर कंडक्टर। सुपर, सबसे सुपर वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है। सुपर मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिलियंस होते हैं लेकिन उसमें रेसिस्टेंस ना के बराबर होता है। रेसिस्टेंस का मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं, दूसरे आयन के साथ कोलाइड करते हैं, तो इसमें कोलिजन ना के बराबर है। मतलब कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द मटेरियल्स विच एक्ट लाइक अ सुपर कंडक्टर। लेकिन ये मटेरियल्स अभी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। अगर जिस दिन ये मटेरियल हमारे लिए उपलब्ध हो गया तो फिर हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक करंट जो अभी हम कॉपर और एल्युमिनियम वायर में फ्लो करवाते हैं उसमें बहुत से एनर्जी हमें लॉस हो जाता है। इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। इस सुपर कंडक्टर में हम जब करंट फ्लो करवाएंगे तो उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बट देयर इज सम कंडीशन। मरकरी एट 4.2 केल्विन, मतलब मरकरी कितना टेम्परेचर पे? 4.2 टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर का काम करता है और ये टेम्परेचर हम नहीं दे सकते हैं। मतलब कि हम अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ी ना बदल सकते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर जो है वो कितना 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इतना मिनिमम टेम्परेचर पे हम हर समय इसे हम कहाँ से दे सकते हैं? इसलिए ये अभी इनके बारे में सर्चिंग चल रहा है। जिस दिन हमें अगर ये मिल गया तो फिर कॉपर और एल्युमिनियम से जो हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे थे वो फिर उसमें हमें बहुत सी एनर्जी लॉस हो जा रहा था, लेकिन ये हमें मिलने पे वो एनर्जी हम बचा सकते हैं। हमें फुल एनर्जी, फुल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा और एनर्जी का वहाँ पे बचत होगा। तो हम समझते हैं, सभी को समझ में आ गया होगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल: इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर।
What is insulator? The materials which have no any free electrons to carry electric charge known as insulator. Example में bricks, rubber, wood etc. Conductor, those materials which have billions of free electrons to carry electric charge known as conductors. All metals are good conductor. Next is semiconductor, those materials which have few free electrons to carry electric charge, they are known as semiconductor. And the next one is superconductor, those materials which have billions of free electron and there is no loss of energy when electric can flow through them, so they are known as superconductor. Example में mercury at 4.2 Kelvin and there are some alloy which work as superconductor at 125 Kelvin. I think you all would have understood. Okay, आपको कंसेप्ट समझना है, बिल्कुल ही रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझिए, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. इससे पहले हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं. जैसे जब हम अपने घरों में फ्रैग्रेंस स्टिक जलाते हैं तो उसका जो स्मेल होता है वो एक सर्टेन रीजन तक ही फैलता है. ऐसा नहीं है कि हम किसी एक घर में फ्रैग्रेंस स्टिक जला दिया और पूरे इंडिया में उसका सुगंध फैल गया. ऐसा तो होता नहीं है. मतलब जब हम फ्रैग्रेंस स्टिक जलाते हैं तो उसका स्मेल एक निश्चित रीजन तक ही फैलता है. उससे बाहर आप जाएंगे तो वो फ्रैग्रेंस स्टिक का जो स्मेल है वो आपको महसूस नहीं होगा, वो आपको फीलिंग नहीं होगा. तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन रीजन बन जाता है उस फ्रैग्रेंस स्टिक के अराउंड, जिस रीजन के अंदर हम स्मेल फीलिंग कर सकते हैं. ओके, उस रीजन, उस बाउंड्री से जैसे ही बाहर जाएंगे तो आपको वो स्मेल आपको फीलिंग नहीं होगा. ठीक उसी तरीका से जब हम कोई पॉजिटिव चार्ज को कहीं पे रखते हैं, किसी मीडियम में रखते हैं, तो इसके आसपास एक रीजन डेवलप होता है, एक रीजन मॉडिफाई हो जाता है. किसके द्वारा मॉडिफाई हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास बन जाता है और ये एक सर्टेन रीजन तक ही बनता है. ऐसा नहीं है कि पूरे हर जगह पे बन जाएगा. तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक डॉटेड लाइन बनाया है. इस डॉटेड लाइन, इस बाउंड्री को आप देख सकते हैं. इससे पता ये चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहीं तक आपको फीलिंग होगा. इसके बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा. इसलिए जिस रीजन, ये बाउंड्री है आपका, ठीक है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होगा. इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बाउंड्री पे या इस बाउंड्री के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फीलिंग होगा. मीन्स फीलिंग का मतलब जब हम कोई भी दूसरे चार्ज को यहाँ पे या इसके अंदर कहीं पर भी लाएंगे तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगा. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट कहाँ पे होगा? ये बाउंड्री पे या बाउंड्री के अंदर. इस बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पे एग्जर्ट नहीं होगा. तो आप कह सकते हैं कि इस बाउंड्री से बाहर वाला जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं इन्फिनिटी. क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं. ये बाउंड्री से बाहर जो भी रीजन है वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी कहलाएगा. और ये जो रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? जब हम किसी यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और इसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज. टेस्ट
चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे सोर्स चार्ज हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज हैविंग वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, क्यू नॉट क्यू। ओके, जब हम किसी टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगा। तो जिस रीजन से, जहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होना शुरू होगा, वहीं से आप समझ जाएंगे कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे बाहर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एग्जर्ट नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको देते, अभी हमने एग्जांपल दिया कि फ्रैग्रेंस स्टिक को आप जलाएंगे तो एक निश्चित रीजन तक ही उसका स्मेल आपको महसूस होगा, उससे बाहर जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि फ्रैग्रेंस स्टिक जल रहा है या नहीं। तो ठीक उसी तरीके से है ना, ये बाउंड्री या बाउंड्री के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे एग्जर्ट होगा, इससे बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे एग्जर्ट नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। लेकिन यहाँ पे पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो चुका है इस सोर्स चार्ज के अराउंड। यू ऑल हैव अंडरस्टूड? तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, बल्कि आप क्या कह सकते हैं कि द स्पेस और द रीजन अराउंड अ चार्ज where another charge experience electrostatic force is known as electric field. What is electric field? The certain region around a source charge where another test charge may experience electrostatic force or electric line of force is known as electric field. Electric field आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक और उदाहरण लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए। ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है। ओके, मैग्नेट आप सब लोग समझते हैं। तो मैग्नेट, जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के नजदीक लाएंगे तो वो मैग्नेट उस मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक सर्टेन रीजन तक ही उपलब्ध होगा, इससे बाहर जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेट के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जहां से मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा वो एक बाउंड्री बन गया आपको। इस बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेट के ऊपर एग्जर्ट नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अभी हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन रीजन तक ही बनता है किसी सोर्स चार्ज के अराउंड। Okay, means electric field is a certain region around a source charge where another charge may experience electrostatic force. Okay, I think you would have understood now.